Namaskar to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, in my video, I will discuss transfer traveling allowance. It is TTA. It is the fourth part of the traveling allowance. Already, I have uploaded first three parts of traveling allowance and it is available in playlist. So please, if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification for my upcoming videos. And it is the very important part of traveling allowance, transfer traveling allowance. I do not want to waste more time. Now I am going to discuss this topic. Meaning of transfer, it is supplementary rule 218. Transfer means movement of an employee from one headquarter station to another to take up duties of a new post or as a result of change of headquarters. To reimburse the expenditure incurred and to compensate the resultant hardship, transfer traveling allowance TTA is granted, which comprises of traveling allowance, it is related to journey, composite transfer grant, everything I will discuss, packing grant, it is related to the reimbursement of charges of transportation of personal effects, and reimbursement of charges on transportation of conveyance. So basically TTA में क्या क्या आता है, जो the employee himself or herself and his or her family members, basically for journey reimbursement. Composite transfer grant, basically it is the 80% of the basic pay of the employee. Then packing grant, related to the transportation of charges of goods from old headquarter to the new headquarter, and reimbursement of charges on transportation of conveyance, basically vehicles also. We can transport from old headquarter to new headquarter. तो ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंस में ये सब हमारा रीइम्बर्स होगा. एलिजिबिलिटी ऑफ टीटीए ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस, employees transferred in public interest will only be entitled to TTA for self and family. It is supplementary rule 114. It is very important. One question is coming. SR 114 में आता है. Those employees getting transfer on public interest, only they are entitled for transfer traveling allowance. Those employees are transferred on request basis. On their personal request, they are not entitled for TTA. So जो पब्लिक इंटरेस्ट में जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उनको TTA मिलेगा, ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा. जिनको पर्सनल रिक्वेस्ट में ट्रांसफ़र मिला है उनको TTA नहीं मिलेगा, वो TTA के लिए एलिजिबल नहीं है. ये थर्ड पॉइंट में मेंशन किया, एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड एट ओन रिक्वेस्ट आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर TTA. सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st January 1999, TTA is allowed for only 2 dependent children. जो हमारा फैमिली, बेसिकली सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स आर एंटाइटल फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस. सो इसमें ओनली 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन ओके कंसिडर करना है. हाउएवर दिस विल नॉट अफेक्ट चिल्ड्रन बॉर्न बिफोर 1/1/1999. तो यहाँ पर जस्ट रिमेंबर करना है कि ओनली 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन वो इन ट्रांसफ़र केस में ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए एंटाइटल है. और थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूँ, जो एम्प्लॉइज़ का रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हुआ है, उनका ओन रिक्वेस्ट में ट्रांसफ़र हुआ है, वो TTA के लिए एलिजिबल नहीं है. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. फर्स्ट TTA एंटाइटलमेंट, हमको TTA में क्या क्या मिलता है डिस्कस करेंगे. फर्स्ट में बोला कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट CTG, इट इज SR 116 में मेंशन है, सप्लीमेंटरी रूल 116.
transfer involving change of station at a distance of more than 20 kilometers. If the distance of the new headquarter and old headquarter is more than 20 kilometers, तब बेसिक पे का 80% कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट मिलता है। जो यहाँ पर जो बेसिक पे होता है उसमें और कोई भी अलाउंस ऐड नहीं होगा। क्लियर? तो ओनली 80% ऑफ लास्ट मंथ्स बेसिक पे इट इज कंसिडर्ड। ना इसमें डियरनेस अलाउंस ऐड होगा, नॉन परफॉर्मिंग अलाउंस ऐड होगा, ना मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगा। कोई प्रकार का अलाउंस आपको नहीं लेना है इसमें, ओनली पे लेवल को लेना है। उसका 80% हमको सीटीजी मिलेगा। मगर कंडीशन क्या है? यदि हमारा न्यू हेडक्वार्टर ओल्ड हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर से ज़्यादा है। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू ए स्टेशन एट ए डिस्टेंस ऑफ लेस देन 20 किलोमीटर्स। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यू हेडक्वार्टर एंड ओल्ड हेडक्वार्टर एंड डिस्टेंस इज लेस देन 20 किलोमीटर्स, उस केस में 1/3 ऑफ सीटीजी, 1/3 ऑफ सीटीजी में बोला 80% ऑफ बेसिक पे, उसका 1/3 मिलेगा। जब न्यू हेडक्वार्टर ओल्ड हेडक्वार्टर के बीच में 20 किलोमीटर से कम डिस्टेंस रहेगा, मगर रेसिडेंस चेंज होगा। प्रोवाइडेड, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड चेंज ऑफ रेसिडेंस इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन ईच केस। रेसिडेंस चेंज होगा और डिस्टेंस होगा जो न्यू हेडक्वार्टर एंड ओल्ड हेडक्वार्टर के बीच में 20 किलोमीटर से कम होगा। तो उस केस में जो सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा वो 1/3 ऑफ द सीटीजी, 1/3 ऑफ द 80% ऑफ द बेसिक पे ऑफ द ट्रांसफर एम्प्लॉय। ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स और लक्षद्वीप आइसलैंड्स, जब ट्रांसफर टू अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स और लक्षद्वीप आइसलैंड्स और ट्रांसफर फ्रॉम दीज आइसलैंड्स 100% ऑफ मंथ्स बेसिक पे। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% ऑफ लास्ट मंथ्स बेसिक पे। यहाँ पर जो सीटीजी होगा वो 100% होगा, बिकॉज नॉर्मली वो 80% ऑफ बेसिक पे होता है सीटीजी, और इस केस में 100% होगा। यदि रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा है, हमारा ट्रांसफर हो रहा है मगर रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा है, उस केस में सीटीजी नहीं मिलेगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट नहीं मिलेगा। इफ नो चेंज ऑफ रेसिडेंस इज इन्वॉल्व्ड, इवन वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस इज मोर देन 20 किलोमीटर्स। जिस जगह को हमारा ट्रांसफर हुआ है, जो न्यू हेडक्वार्टर है और ओल्ड हेडक्वार्टर, दोनों में डिस्टेंस 20 किलोमीटर से ज़्यादा है मगर कोई रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा है, इस केस में सीटीजी नहीं मिलेगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट नहीं मिलेगा। और इसमें मैं वही लिखा, बेसिक पे जो होगा यहाँ, इसमें ना डीए ऐड होगा, जो डियरनेस अलाउंस, ना नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, ना मिलिट्री सर्विस पे, कुछ ऐड नहीं होगा। नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस जो डॉक्टर लोगों को मिलता है, मिलिट्री सर्विस पे डिफेंस पर्सनल्स को मिलता है, ये जो बेसिक पे के ऊपर लगता है। तो ना डियरनेस अलाउंस, डीए, एनपीए और मिलिट्री से, ये कोई भी उसमें ऐड नहीं होगा, ओनली पे लेवल को लेना है। और नॉर्मली बेसिक पे का 80% मिलता है जब हमारा ट्रांसफ़र होता है। और उस केस में जो न्यू हेडक्वार्टर होगा, इट इज़ 20 किलोमीटर मोर देन द ओल्ड हेडक्वार्टर, 20 किलोमीटर मोर। तो उस केस में 80% ऑफ सीटीजी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यू हेडक्वार्टर एंड ओल्ड हेडक्वार्टर इज लेस देन 20 किलोमीटर, देन सीटीजी इज 1/3 ऑफ सीटीजी। 1/3 ऑफ सीटीजी मीन सीटीजी बेसिकली 80% ऑफ बेसिक पे, 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे। मगर जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है डिस्टेंस मोर देन 20 किलोमीटर से, मगर रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ पर सीटीजी नहीं मिलेगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट नहीं मिलेगा। ये टीटीए का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड, फॉर जर्नी बाय रोड बिटवीन प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल। हमारा ट्रांसफ़र हो गया, अब हम जर्नी कर रहे हैं मगर रेल कनेक्शन नहीं है। जो हमारा न्यू हेडक्वार्टर है, हम जाने के लिए रेल कनेक्शन नहीं है, देयर इज़ नो रेल कनेक्टिविटी टू द न्यू हेडक्वार्टर। तो बेसिकली जर्नी वुड बी कंडक्टेड बाय रोड। तो इस केस में एक्चुअल बस फेयर फॉर सेल्फ एंड ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इफ ट्रैवल्ड बाय पब्लिक बस, तो एंटाइटलमेंट ऑफ कन्वेयंस बीइंग एज ऑन टूर। टूर केस में जैसे होता है उस केस में ऐसे ही ईच मेंबर ऑफ द फैमिली
ओके, अर्नड फॉर सेल्फ। ओके, ये रीइंबर्स होगा। माइलेज अलाउंस आज बिलो, ये जो माइलेज अलाउंस दिया है नीचे में, पर्सन्स ट्रैवलिंग, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है माइलेज अलाउंस आज बिलो ट्रैवल्ड बाय एनी मोड अदर देन पब्लिक बस। पब्लिक बस के अलावा यदि हम जर्नी अदर कोई मोड में कंप्लीट करते हैं, हमको माइलेज अलाउंस कैसे मिलेगा? सेल्फ ओनली 1 रोड माइलेज, सेल्फ प्लस 1 में फैमिली मेंबर, इसमें भी 1 रोड माइलेज, सेल्फ प्लस 2 फैमिली मेंबर्स 2 रोड माइलेज, सेल्फ प्लस मोर देन 2 फैमिली मेंबर्स 3 रोड माइलेज। ओके, यदि हमारा जर्नी बस में नहीं हो पाया और कोई एनी अदर मोड में हुआ तो नंबर ऑफ जो रोड माइलेज होगा वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। मगर इसमें जो सेकेंड पॉइंट है, इसमें रेल कनेक्टिविटी नहीं है, देयर इज नो रेल कनेक्टिविटी टू द न्यू हेडक्वार्टर। तो इस केस में डेफिनेटली द एम्प्लॉय एंड हीज और हर फैमिली मेंबर्स कंप्लीट द जर्नी बाय रोड, और इस तरीके से रोड माइलेज कैलकुलेट होगा। फॉर जर्नी बाय रोड बिटवीन प्लेसेस कनेक्टेड बाय रेल, सपोज रेल कनेक्टिविटी है, देयर इज रेल कनेक्टिविटी टू द न्यू हेडक्वार्टर, इस केस में हम भी रोड जर्नी कर सकते हैं, मगर जो रीइंबर्समेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू द रेल जर्नी के हिसाब से होगा। तो फॉर जर्नी बाय रोड बिटवीन प्लेसेस कनेक्टेड बाय रेल, रोड माइलेज अबोव सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ द रेल माइलेज एंटाइटल्ड। रेल कनेक्टिविटी है मगर हम रोड बाय रोड हम जर्नी किया तो उस केस में रीइंबर्समेंट होगा, मगर किसके हिसाब से होगा? ना रेल जर्नी के हिसाब से होगा। ओके, देन नेक्स्ट वन, ये पार्ट डी हो गया। ओके, फिर चलेंगे ई, पैकिंग ग्रांट मिलता है। पैकिंग ग्रांट क्या होता है? हमारा जो सामान है हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, उसको कैसे रीइंबर्स किया जाएगा? वही है, इट इज़ बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स। हमारा जो पर्सनल मटेरियल्स हम न्यू हेडक्वार्टर को भेजेंगे उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा उसको पैकिंग ग्रांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट, पे लेवल 12 एंड अबोव बाय ट्रेन और स्टीमर 6000 kgs बाय गुड्स ट्रेन और 4 व्हीलर वागन और 1 डबल कंटेनर। ट्रेन में 6000 kg हम लेंगे, 4 व्हीलर वागन और 1 डबल कंटेनर, बेसिकली 1 डबल कंटेनर इन केस ऑफ शिप। क्लियर? तो बाई रोड रुपीज पर किलोमीटर 50 रुपीज हमारा रिइंबर्समेंट होगा। पे लेवल 12 एंड अबव, इसको याद रखना है। कितना केजी का गुड? 6000 kgs बाई गुड्स ट्रेन और 4 व्हीलर वागन और 1 डबल कंटेनर, 50 रुपीज पर किलोमीटर। 6 to 11 पे लेवल वही 6000 kgs बाई गुड्स ट्रेन और 4 व्हीलर वागन और 1 सिंगल कंटेनर। बेसिकली जो शिप में जाएगा वो सिंगल कंटेनर होगा, क्योंकि पे लेवल जो 12 एंड अबव था वो डबल कंटेनर था, मगर इसमें 6 to 11 पे लेवल में वही 6000 kg गुड हम ले सकते हैं ट्रेन में और 4 व्हीलर वागन में और 1 सिंगल कंटेनर। इसमें भी पर किलोमीटर 50 रुपीज़ हम रीइंबर्स करेंगे। पे लेवल 5 3000 kgs ट्रांसपोर्ट होगा, पर किलोमीटर 25 रुपीज़ रीइंबर्स होगा। और 4 एंड बिलो 1500 kgs और पर किलोमीटर 15 रुपीज़ रीइंबर्स होगा। तो ऐसे ही इट इज़ डिवाइडेड, जो पैकिंग ग्रांट है इसको इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 वेज, स्प्लिट ऑफ इनटू 4 वेज। 12 एंड अबव पे लेवल, 6 to 11 पे लेवल 5 एंड पे लेवल 4 एंड बिलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से रीइंबर्समेंट होगा। नेक्स्ट, द रेट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग द एंटाइटल्ड वेट बाय स्टीमर विल बी इक्वल टू द prevailing rates prescribed by such transport in ships operated by Shipping Corporation of India SR 116। जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो जो रेट फिक्स करेगा तो उसी रेट के हिसाब से रेट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग द एंटाइटल्ड वेट बाय स्टीमर विल बी इक्वल टू द प्रिवेलिंग रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय सच ट्रांसपोर्ट इन शिप्स ऑपरेटेड बाय शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये SR 116 में है। यहाँ पर सेकेंड में ये जो मैं बताया पर किलोमीटर जो 12 एंड अबव एंड 6 to 11 50 रुपीज़ पर किलोमीटर है रीइंबर्स होगा। पे लेवल 5 में
₹25 होगा, पे लेवल 4 एंड बिलो ₹15 होगा। जब हमारा DA बेसिकली डियरनेस अलाउंस जब 50% हो जाएगा, तब ये जो रेट है वो 25% हाइक हो जाएगा। जो ₹50 ₹25 और ₹15 पर किलोमीटर रिम्बर्स होता था, वो 25% हाइक हो जाएगा। कब? जब हमारा डियरनेस अलाउंस 50% हो जाएगा। द रेट्स ऑफ एंटाइटलमेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स shall automatically increase by 25% whenever DA in the revised pay structure goes up by 50%. The reimbursement shall be allowed on production of actual receipts or vouchers. Actual receipt और voucher को submit करना है, even in transfer cases of North East region, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स एंड लक्षद्वीप ऑल्सो। ये जो पैकिंग ग्रांट हमको मिलेगा, जैसे आप मूवर्स एंड पैकर्स में ले रहे हो, तो उसका जो वाउचर है उसका बिल हमको सबमिट करना पड़ेगा। और बेसिकली 12 बैंड अबो पर किलोमीटर ₹50 मिलेगा, 6 to 11 पे लेवल ऑल्सो पर किलोमीटर ₹50 मिलेगा, पे लेवल 5 इट इज़ ₹25 एंड पे लेवल 4 एंड बिलो ₹15। उसमें दिया है 6000 kgs, इसको डिस्कस कर चुका हूँ। इट मीन्स पे लेवल 6 एंड अबव ₹6000 बाई ट्रेन, बाई 4-wheeler वागन और डबल कंटेनर सिंगल कंटेनर में बताया। और पे लेवल 5 में 3000 kgs ट्रांसपोर्ट होगा और पे लेवल 4 एंड बिलो में 1500 kgs ट्रांसपोर्ट होगा। तो जब आपका ट्रांसफर होता है उसी को फॉलो करना है। सर्विस टैक्स एंड एजुकेशन सेस इंक्लूडेड इन द ट्रांसपोर्टेशन बिल विल बी रीइंबर्स्ड अप टू द परमिसिबल लिमिट ऑफ द क्लेम। सर्विस टैक्स और एजुकेशन सेस यदि ट्रांसपोर्टेशन बिल में ऐड होता है वो भी रीइंबर्स होगा। यह सप्लीमेंट्री रूल 116 में है। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स और सिटीज हैज बीन डन अवे विथ, अभी उसको अबॉलिश कर दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स और सिटीज। फिर आएगा कन्वेयंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ कन्वेयंस। जैसे हमारे पास कार है कि कोई 2-wheeler से, उसको भी हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके लिए भी हमको रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। यही है ट्रांसपोर्ट ऑफ कन्वेयंस। द पोजीशन ऑफ द कन्वेयंस आइदर एट द ओल्ड और एट द न्यू स्टेशन नीड नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, SR 116 में है। तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं देखेंगे। पे लेवल 6 एंड अबव 1 मोटर कार एटसेट्रा और 1 मोटरसाइकिल और स्कूटर। 1 मोटरसाइकिल को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और 1 मोटरसाइकिल और स्कूटर को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 5 एंड बिलो 1 मोटरसाइकिल और स्कूटर और मोप्ड और बाईसाइकिल। तो 6 एंड अबव मोटर कार को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और 5 एंड बिलो मोटर कार को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए भी हम रीइंबर्समेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वेयंस चार्जेस। उसको ट्रांसपोर्ट बाय रेल, सपोज चाहे मोटर कार हो कि चाहे आपका 2-wheeler हो, उसको आप रेल में लेना चाहते हो। जस्ट यू वांट टू ट्रांसपोर्ट बेसिकली योर कार एंड योर 2-wheeler बेसिकली बाय पैसेंजर ट्रेन टू द न्यू हेडक्वार्टर। तो उसमें एक्चुअल फ्राइट चार्जेस बाय द रेलवे, जो फ्राइट चार्जेस एक्चुअली रेलवे लगाता है बाय पैसेंजर ट्रेन में, तो वो रीइंबर्समेंट होगा। गुड्स ट्रेन में आप लेना चाहते हो आपका कार को कि आपका 2-wheeler को, तो वहाँ पर क्या क्या रीइंबर्स होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ पैकिंग, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द पैक्ड कार, मोटरसाइकिल टू एंड फ्रॉम द गुड्स सेड, कॉस्ट ऑफ क्रेटिंग द कार, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, कॉस्ट ऑफ रोप्स एटसेट्रा आर ऑल रीइंबर्सेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। मगर जो क्लेम हम करेंगे वो जो फ्राइट रेट है, पैसेंजर ट्रेन में जो फ्राइट रेट है उससे ज़्यादा नहीं होगा, फ्राइट रेट के हिसाब से ही रीइंबर्समेंट होगा। ये सब रीइंबर्स होगा, मगर जो रीइंबर्समेंट हम देखेंगे वो बेसिकली इट मस्ट बी इक्वल टू द फ्राइट रेट चार्ज बाय द पैसेंजर ट्रेन और लेस देन दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेम टू बी लिमिटेड टू द फ्राइट बाय पैसेंजर ट्रेन, इट इज SR 116A 1 IV में मेंशन है। इफ ए कार इज ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रेन, यदि कार को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाय ट्रेन, ए सेकेंड क्लास फेयर फॉर द ड्राइवर, एक सेकेंड क्लास फेयर मिलेगा फॉर द ड्राइवर बिटवीन प्लेसेस फ्रॉम व्हिच एंड टू व्हिच द कार इज ट्रांसपोर्टेड। जब हम कार को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हमारा ट्रांसफर हो गया, हमारा कार को, पर्सनल कार को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उस केस में एक सेकेंड क्लास फेयर मिलेगा ड्राइवर को। ओके, सेकेंड क्लास फेयर मिलेगा। तो जिस स्टेशन से वो जा रहा है और जिस स्टेशन तक वो जाएगा, सेकेंड क्लास फेयर मिलेगा, विल बी अलाउड बाय द पैसेंजर ट्रेन।
ओके, विल बी अलाउड बाय द पैसेंजर ट्रेन। ये सप्लीमेंट्री रूल 116A(1)(IV) में है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि हम रोड में लेकर जाएंगे, जैसे हमारा कार की स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोब्ड, इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे बाय रोड, तो कैसे क्या रिइंबर्स करेंगे देखेंगे। व्हेन द कन्वेयंस इज सेंट लोडेड ऑन ए ट्रक, यदि हम कार को ट्रक में लेकर जाएंगे या हमारा मोटरसाइकिल को ट्रक में लेकर जाएंगे, तो बिटवीन प्लेसेस कनेक्टेड बाय रेल, माने एक्चुअली रेल कनेक्शन है, हम रेल में नहीं लेंगे। जब भी मैं बताया पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन, और सभी समय जो रिइंबर्स होगा वो फ्लाइट रेट्स ऑफ पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से होगा। यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी है मगर हम रोड में लेना चाहते हैं, हमारा जो कन्वेयंस है, हमारा कार है कि हमारा टू व्हीलर्स है, तो उसमें जो भी रिइंबर्समेंट होगा इट मस्ट बी इक्वल टू द फ्लाइट रेट्स ऑफ द पैसेंजर ट्रेन और लेस देन दैट। आप रोड में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जो रिइंबर्समेंट होगा, जो अमाउंट रिइंबर्समेंट होगा, वो जो फ्लाइट रेट्स है पैसेंजर ट्रेन में उससे समान होगा और उससे कम होगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंट एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय पैसेंजर ट्रेन और व्हिच एवर द लिस्ट। बिटवीन प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल, यदि रेल कनेक्टिविटी नहीं है तब हम हमारा कन्वेयंस को बाय रोड लेकर जाएंगे, तो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो रेट फिक्स किया है उसके हिसाब से रिइंबर्समेंट होगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस लिमिटेड टू द अमाउंट एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। व्हेन द कन्वेयंस इज सेंट अंडर ओन प्रपोल्जन, यदि हमारा कार है, हम खुद का हमारी कार में हम जाएंगे, तो अमाउंट एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट लिमिटेड टू द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय पैसेंजर ट्रेन, वहाँ पर भी जो हम अमाउंट रिइंबर्समेंट होगा वो जो फ्लाइट रेट था पैसेंजर ट्रेन में, तो उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उसके साथ समान होगा और उससे कम होगा। और रेल कनेक्टिविटी नहीं है, हम खुद का कार को हम लेकर जा रहे हैं न्यू हेडक्वार्टर को, तो उस केस में जो अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड रेट है, जो प्रिस्क्राइब्ड रेट फिक्स किया है रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो भी फिक्स किया है उसी रेट में हमारा रिइंबर्समेंट होगा, यदि हम हमारा प्रपोल्जन को कि हमारा कार को हम लेकर जाएंगे न्यू हेडक्वार्टर को ट्रांसफर टाइम में। द रेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर जर्नी बाय टैक्सी और ऑटो रिक्शा as the case may be by the director of transport at the starting point. When the conveyance is sent under its own propulsion, the government servant or members of family traveling in the car will not be entitled to separate fare by air, rail और road mileage। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारा खुद का कार में हम ट्रैवल कर रहे हैं न्यू हेडक्वार्टर को, तो उस केस में सेपरेटली ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा गवर्नमेंट सर्वेंट को और उसका फैमिली मेम्बर्स को। सेपरेटली जो एयर, रेल, रोड माइलेज जो सब फैसिलिटीज है हमको मिलता है वो नहीं मिलेगा। हम सपोज बाय यूजिंग आवर ओन कार, इफ वी कवर द जर्नी टू न्यू हेडक्वार्टर, then in this case there is no separate traveling allowance for the government servant or members of the family, okay, by air, rail or road mileage. Separate air or rail or road mileage will be admissible for the government servant and members of family if they travel otherwise than by the conveyance being transported under its own propulsion. यदि हमारा फैमिली मेम्बर अलग जाएंगे, हमारा खुद का कार को हम न्यू हेडक्वार्टर को लेकर गया और हमारा जो फैमिली मेम्बर्स वो अलग तरीके से जाएंगे, तो उस केस में सेपरेटली जो फैमिली मेम्बर्स वो जर्नी करेंगे उनके लिए सेपरेटली ट्रैवलिंग अलाउंस रिइंबर्स होगा। ओके, जो एंटाइटल है गवर्नमेंट सर्वेंट एयर में कि रेल में कि रोड माइलेज में, उसमें फैमिली मेम्बर जाएंगे तो उसके हिसाब से उनको इट मीन्स रिइंबर्समेंट होगा। क्लियर उस केस में। मगर जब हम हमारा खुद का कार में जाएंगे तब हमको ट्रैवलिंग अलाउंस सेपरेटली नहीं मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट को और फैमिली मेम्बर्स को। मगर सेपरेटली हम जाएंगे, इट इज टोटली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रपोल्जन अलग जाएगा, हमारा कार को हम खुद भेजेंगे और हम अलग तरीके से जर्नी को कवर करेंगे, हमारा न्यू हेडक्वार्टर जाएंगे, तो उस केस में जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो हमारा एंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से रिइंबर्समेंट होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइसाइकिल बिटवीन प्लेसेस कनेक्टेड बाय रेल, actual cost of transportation limited to the freight charges by passenger train. Between places not connected by rail, mileage at the rate of rupees 1.20 per kilometer, SR 116। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल, ट्रांसपोर्ट ऑफ बाईसाइकिल, इसको याद रखना है।
नेक्स्ट आएगा एडमिसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर टीए फॉर एम्प्लॉइज फैमिली। हम जानते हैं जब हमारा ट्रांसफ़र होता है व्हेन ट्रांसफ़र इज अकर्ड, बेसिकली द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हीज और हर फैमिली मेम्बर्स आर एंटाइटल्ड फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस। तो देखेंगे फैमिली मेम्बर्स में एक्चुअली व्हिच आर इंक्लूडेड इन द फैमिली मेम्बर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन इज आस्किंग। फर्स्ट वन, स्पाउस रिजाइडिंग विद द एम्प्लॉई नीड नॉट बी डिपेंडेंट, ओनली वन वाइफ इज इंक्लूडेड इन द टर्म फैमिली। यहाँ पर याद रखना है फर्स्ट वन, ओनली वन वाइफ इज इंक्लूडेड, नॉट मोर देन वन। होली डिपेंडेंट लेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड स्टेप चिल्ड्रन, दोनों को लेना है। मैं बोला जो चिल्ड्रन होगा फर्स्ट टू चिल्ड्रन होगा, फर्स्ट टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन। होली डिपेंडेंट लेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड स्टेप चिल्ड्रन इंक्लूडिंग मेजर सन्स, लीगली अडॉप्टेड वंस, विडोड डॉटर्स रिजाइडिंग विद द एम्प्लॉय, मगर फर्स्ट टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन ये SR 28 में है। जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हम लेंगे फर्स्ट टू, चाहे वो लेजिटिमेट चाहे स्टेप। ओके। थर्ड वन, मैरिड डॉटर्स डाइवोर्स्ड, abandoned or separated from husband residing with and financially dependent on the employee. Wholly dependent parents, stepmother, unmarried sisters and minor brothers, major brothers नहीं लेना है, minor brothers residing with the employee, major brothers are not included, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप फादर नहीं, स्टेप मदर को लेंगे। स्टेप फादर इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। डेफिनेशन ऑफ फैमिली में स्टेप फादर को नहीं लेंगे, वो स्टेप फादर इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, इट इज SR 28। होली डिपेंडेंट widowed sister living with the employee provided father is not alive or father himself is dependent on the employee in supplementary rule 28। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री रूल 28, कभी कभी क्वेश्चन आता है। होली डिपेंडेंट चिल्ड्रन स्टडिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अवे फ्रॉम द पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर बट जॉइनिंग देम ऑन ट्रांसफर, वो भी एलिजिबल है। SR 116। चिल्ड्रन टेकन एज वार्ड्स अंडर द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 एंड ट्रीटेड एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली एंड गिवन सेम स्टेटस एज दैट ऑफ नेचुरल चिल्ड्रन बाय स्पेशल विल, अगेन इट इज सप्लीमेंट्री रूल 28। गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, इसको याद रखना है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। उसके हिसाब से हमारा जो नेचुरल चिल्ड्रन है और जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, ओके, वो भी जो हम बोलते हैं लेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन, वो एलिजिबल है क्योंकि वो चिल्ड्रन टेकन एज वर्ड्स। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/1999 ट्रांसफर TA विल बी एडमिसिबल ओनली फॉर 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन, however this will not affect children born before 1/1/1999 SR 28 में। फर्स्ट 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंटाइटल फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ये पूरा फैमिली हो गया। थोड़ा डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट को देखेंगे। जो यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं होगा, वाइफ का केस में डिपेंडेंट नहीं होगा, तो इनकम लिमिट फॉर डिपेंडेंसी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन, दैट इज ₹9,000 पर मंथ। तो फैमिली पेंशन मिलता है मिनिमम ₹9,000 इनकम लिमिट, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे ज़्यादा होगा तो वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। ओके, ₹9,000 प्लस उसके ऊपर जो इट मीन्स डियरनेस रिलीफ मिलता है। जैसे हमको जो डियरनेस अलाउंस हमको मिलता है, DA बोलते हैं, उनके लिए डियरनेस रिलीफ मिलता है पेंशन के लिए, वो भी ऐड हो सकता है, और यही है मिनिमम। उससे ज़्यादा होगा तो वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। ओके, तो डिपेंडेंट नहीं है तो वाइफ के अलावा वो डिपेंडेंट नहीं है तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए एंटाइटल नहीं है। कंडीशंस गवर्निंग ट्रैवल बाय फैमिली इन केस ऑफ ट्रांसफर्स, फैमिली कैसे ट्रैवल कर सकते हैं न्यू हेडक्वार्टर को, वो देखेंगे। फैमिली हैज द ऑप्शन टू ट्रैवल, ये ऑप्शन क्वेश्चन आता है। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आता है, जो डिफरेंट एग्जामिनेशन, डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम की प्रिंसिपल एग्जामिनेशन, वाइस प्रिंसिपल एग्जामिनेशन और इन एनी अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ये ऑप्शन आता है। तो फैमिली के लिए जो फैमिली का ट्रैवल होगा फ्रॉम द ओल्ड हेडक्वार्टर्स टू द न्यू हेडक्वार्टर और फ्रॉम एनी अदर स्टेशन टू द न्यू हेडक्वार्टर और फ्रॉम द ओल्ड हेडक्वार्टर टू एनी अदर स्टेशन, फैमिली मेंबर ट्रैवल कर सकते हैं। और एक बार बोलता हूँ, ये SR 116 में है, ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर, फ्रॉम एनी अदर स्टेशन टू न्यू हेडक्वार्टर और फ्रॉम द ओल्ड हेडक्वार्टर टू एनी अदर स्टेशन। मगर यहाँ पर जो रीइंबर्समेंट होगा वो कैसे होगा? ओनली फ्रॉम ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर। फैमिली कैसे भी ट्रैवल कर सकता है, ये 3 वेज में ट्रैवल कर सकता है, मगर जो रीइंबर्समेंट होगा वो किसके साथ लिमिटेड होगा ना, ओनली फ्रॉम ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ग्रीन में मैं लिख दिया।
but the claim will be restricted to that admissible from the old to the new headquarters. टाइम लिमिट देखेंगे, जो फैमिली जर्नी होगा टाइम लिमिट देखेंगे, ये SR 116B III में है. द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड परफॉर्म द जर्नी नॉट अर्लियर देन 1 month प्रायर टू द डेट ऑफ रिलीफ एट द ओल्ड स्टेशन. जो डेट ऑफ रिलीफ है, ओल्ड स्टेशन में हमको रिलीफ किया जाएगा ना, जो डेट ऑफ रिलीफ है उसका माने नॉट अर्लियर देन 1 month, नॉट अर्लियर देन 1 month बिफोर द डेट ऑफ रिलीफ और विद इन 6 months ऑफ हिज टेकिंग ओवर चार्ज एट द न्यू स्टेशन. जब न्यू स्टेशन में जाकर आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ वो ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने से 6 months के अंदर उसका फैमिली ट्रैवल करेगा और वो ट्रैवलिंग अलाउंस को हम रिइंबर्स कर सकते हैं. नहीं तो हम जो डेट में रिलीफ हमको रिलीव किया गया ओल्ड हेडक्वार्टर में, उसका नॉट अर्लियर देन 1 month बिफोर, उसके पहले भी फैमिली जर्नी कर सकता है बट नॉट अर्लियर देन 1 month. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस टाइम लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड इन डिजर्विंग केसेस बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चाहेगा तो उसको ये टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है. No TA is allowed to any person added to the family after the date of transfer. ट्रांसफर के पहले आपका सर्विस बुक में आप फैमिली मेंबर्स दिया है, तो ट्रांसफर के पहले आप कोई फैमिली मेंबर को ऐड हुआ उसको कंसिडर किया जाएगा. मगर आपका ट्रांसफर होने के बाद आप जो फैमिली मेंबर को ऐड करोगे सर्विस बुक में, उसके लिए टीए जो ट्रैवलिंग अलाउंस उसके लिए अलाउ नहीं होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है. जो भी फैमिली मेंबर को आपको ऐड करना है सर्विस बुक में, वो ट्रांसफर के पहले करना है. जस्ट बिफोर द ट्रांसफर यू कैन ऐड द फैमिली मेंबर, बट आफ्टर ट्रांसफर इफ यू वांट टू ऐड देन एडिंग मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस. इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय ट्रांसफर्ड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ हेडक्वार्टर्स, TA for the family members and carriage of personal effects may be claimed within 2 months from the date of transfer. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपका हेडक्वार्टर चेंज हो गया, आपका पर्सनल इफेक्ट्स को आप ट्रांसपोर्ट करते हो और गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, इट मीन्स दे ट्रैवल टू न्यू हेडक्वार्टर. ये सब केस में हम जो क्लेम करेंगे, जो ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम करेंगे, तो वो 2 months के अंदर विद इन 60 days, अभी 7th पे में विद इन 60 days, 60 days के बाद इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो फॉरफिट हो जाएगा. जो भी हम क्लेम करेंगे ट्रैवलिंग अलाउंस, जैसे हमारा गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट किया, तो वो जब डिलीवरी होगा न्यू हेडक्वार्टर में जिस डेट में, उससे हम 2 months के अंदर उसको हम क्लेम करेंगे. सपोज हम ट्रेन में लेकर गया, कि हम ट्रक में लेकर गया, कि हम सपोज शिप में लेकर गया, तो वो वहाँ पर हमारा न्यू हेडक्वार्टर में हमारा जो पर्सनल मटेरियल है वो डिलीवरी हो गया, उसी डेट में हमको वाउचर मिलेगा, उसी से हमको 2 months के अंदर हमको उसको क्लेम करना है. जैसे हम बेसिकली फैमिली मेंबर्स एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट दे ट्रैवल टू न्यू हेडक्वार्टर अकॉर्डिंग टू देयर एंटाइटलमेंट बाय रोड और बाय रेल और बाय एयर, तो उस केस में भी ट्रैवलिंग अलाउंस हम एंटाइटल है, ट्रैवलिंग अलाउंस को हम रीइंबर्स कर सकते हैं. तो उस केस में भी जब हम रीच करेंगे और गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन करेगा, तो उसका 2 months के अंदर हम उसको क्लेम करेंगे. बेसिक कन्वेयंस केस में हमारा कोई भी कार हो कि यानी 2 व्हीलर्स हो, उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो जब डिलीवरी हो जाएगा न्यू हेडक्वार्टर में जो जिस डेट में, उसी डेट से 2 months के अंदर, इट मीन 60 days के अंदर हमको क्लेम करना है जो कन्वेयंस चार्जेस. सो पैकिंग चार्जेस, कन्वेयंस चार्जेस और ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फैमिली मेंबर्स, ये सब जो क्लेम होगा वो कितने दिन के अंदर होगा? 60 days के अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट है. एडिशनल फेयर, सप्लीमेंट्री रूल 116, द एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल्ड फॉर एन एडिशनल फेयर बाय द एंटाइटल्ड क्लास फॉर सेल्फ फॉर बोथ ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी if he has to leave his family behind due to non-availability of government accommodation at the new places of posting. न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग में गवर्नमेंट अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में एडिशनल फेयर रीइंबर्स होगा एम्प्लॉय को. वो सेकंड टाइम आ सकता है. फर्स्ट टाइम वो अकेला गया, वहाँ पर अकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं है, तो उसका फैमिली को वो छोड़ कर गया ओल्ड हेडक्वार्टर में, तो एक जर्नी में वो टू एंड फ्रो हो गया. और सेकेंड टाइम आएगा उसका फैमिली को लेकर जाएगा, तो सेकेंड टाइम में पर्टिकुलरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी
जो ट्रैवलिंग में जो खर्च होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर होगा, वो भी रीइंबर्स होगा। तो यहाँ पर एडिशनल फेयर, मगर कंडीशन क्या है, जब अकोमोडेशन फैसिलिटी न्यू हेडक्वार्टर में नहीं है तो वहाँ पर एडिशनल फेयर मिलता है। ऑफिशियल्स हु कुड नॉट टेक फैमिली मेंबर्स अलोंग विथ हिम और हर ऑन देयर सेकेंड ट्रिप ड्यू टू जेन्युइन रीजन्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू एन एडिशनल टू एंड फ्रो फेयर बाय द एंटाइटल क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। An employee whose family does not accompany him to the new station while joining on transfer has an option to claim for him. जब when the employee suppose at the it means travel to the headquarter, okay, alone. Suppose he or she does not accompany with family members, वो अकेला गया, फैमिली मेंबर को नहीं लिया, तो वो कैसे रिइंबर्समेंट होगा? आइदर फॉर द फास्ट जर्नी, जो गवर्नमेंट सर्वेंट को फास्ट जर्नी में वो रिइंबर्स कर दिया तो सेकेंड टाइम जो आएगा फैमिली को लेकर जाएगा, तो एटलीस्ट जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो सेकेंड टाइम जर्नी किया, गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलेगा रिइंबर्समेंट, क्योंकि फास्ट जर्नी में वो ले लिया रिइंबर्समेंट। तो आइदर फॉर द फास्ट जर्नी अंडरटेकन टू ज्वाइन द न्यू पोस्ट और फॉर द जर्नी सब्सिक्वेंटली अंडरटेकन अलोंग विथ फैमिली मेंबर्स। तो बेसिकली रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट। फर्स्ट टाइम वो अकेला गया, first time actually he or she alone travel to the new headquarter, and second time he or she again come back and accompany with family members and goes to the new headquarter। तो इस केस में तो एक ही बार तो गवर्नमेंट सर्वेंट वो उसका ट्रैवल के लिए वो 2 बार ट्रैवल किया गवर्नमेंट सर्वेंट, मगर एक बार को उसके लिए रिइंबर्समेंट होगा, जो ट्रैवल एक्सपेंडिचर किया वो रिइंबर्समेंट होगा, और सेकेंड टाइम जो फैमिली गया फैमिली के लिए रिइंबर्समेंट होगा। ट्रांसफर एट द सेम स्टेशन, यदि ट्रांसफर होता है सेम स्टेशन विद इन सेम हेडक्वार्टर, तो उसमें क्या है, SR 116 में है नो TA इफ नो चेंज ऑफ रेसिडेंस इज इन्वॉल्व। यदि हमारा रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा है तो वहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। इफ देयर इज कंपल्सरी चेंज ऑफ रेसिडेंस सोनली ड्यू टू द ट्रांसफर, यदि रेसिडेंस चेंज हो रहा है, माने सेम स्टेशन में ट्रांसफर हो रहा है मगर हमारा रेसिडेंस चेंज हो रहा है, तो उस केस में 2 कंडीशंस है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कन्वेयंस फॉर सेल्फ एंड फैमिली लिमिटेड टू द रोड माइलेज एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स एडमिसिबल सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। और जो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा वो 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे। मैं बताया, इसको बता चुका था, यदि आपका सेम स्टेशन में ट्रांसफर हुआ और आपका रेसिडेंस चेंज नहीं हुआ, तब उस केस में आपको CTG कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट नहीं मिलेगा, कि कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। यदि आपका सेकेंड कंडीशन देखो, सेम स्टेशन में ट्रांसफर हो रहा है मगर आपका रेसिडेंस चेंज हो रहा है, तो उस केस में रोड माइलेज मिलेगा, रोड माइलेज के हिसाब से रिइंबर्समेंट होगा, मगर कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट 1/3 होगा। मैं बता चुका हूँ, मोर देन 20 किलोमीटर्स जब हमारा न्यू हेडक्वार्टर होगा, मोर देन 20 किलोमीटर फ्रॉम द ओल्ड हेडक्वार्टर, तब केस में 80% ऑफ बेसिक पे CTG होता है। मगर जब लेस देन 20 किलोमीटर होगा, जो हमारा ट्रांसफर हुआ वो लेस देन 20 किलोमीटर फ्रॉम द ओल्ड हेडक्वार्टर, तब उस केस में जो CTG मिलता है वो 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे। तो उस केस में तो जब रेसिडेंस चेंज होना चाहिए, रेसिडेंस चेंज नहीं होगा तो CTG नहीं मिलेगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट नहीं मिलेगा। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस केस में कंपल्सरी रेसिडेंस चेंज होगा तो रोड माइलेज उसको हिसाब से उसको रिइंबर्समेंट मिलेगा और कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे। ये सेम स्टेशन में ट्रांसफर हो रहा है, ये रूल 116 SR 116 में है, सप्लीमेंट्री रूल 116 में। ट्रांसफर विद इन ए शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ नॉट मोर देन 20 किलोमीटर्स, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रांसफर हो रहा है, नॉट मोर देन 20 किलोमीटर्स, नो TA वही है, TA नहीं मिलेगा, नो चेंज ऑफ रेसिडेंस इज इन्वॉल्व। और इफ चेंज ऑफ रेसिडेंस इज इन्वॉल्व, फुल ट्रांसफर TA विल बी अलाउड। फुल ट्रांसफर जो भी रोड माइलेज मिलेगा, हमारा जो जर्नी में जो रोड माइलेज के हिसाब से बाई बस जाएंगे तो उसको रिइंबर्समेंट किया जाएगा, कि बाई ट्रेन में जाएंगे रिइंबर्समेंट किया जाएगा। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट यहाँ पर 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे मिलेगा, क्योंकि जो ट्रांसफर हुआ है वो लेस देन 20 किलोमीटर से। नेक्स्ट, व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड द सेम स्टेशन टू अनदर स्टेशन, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ जॉब में है
उनका जो ट्रांसफर हुआ सेम स्टेशन को हुआ, फ्रॉम वन एंड द सेम स्टेशन टू अनदर सेम स्टेशन, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों स्पाउस का ट्रांसफर सेम स्टेशन को हुआ, SR 116 में है। आपको याद रखना है एक ही टाइम में दोनों का ट्रांसफर होगा और दोनों एक ही टाइम में रिलीव होंगे तो एक ही स्पाउस को ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा। यदि एक साथ वो जाकर न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन करते हैं। और एक ऑप्शन है, यदि हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया 60 डेज के अंदर, सपोज वाइफ का ट्रांसफर वही स्टेशन को हुआ, अच्छे से सुनो, हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, उसके बाद विद इन 60 डेज वाइफ का ट्रांसफर उसी जगह को होता है, तो ओनली एक स्पाउस को ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा विद इन 60 डेज। क्लियर? मगर सेकंड कंडीशन वही चीज में लिख दिया, देखो फिर और एक बात बताऊंगा। व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ कपल बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन एंड द सेम ओल्ड स्टेशन टू द वन एंड द सेम न्यू स्टेशन विद इन 60 डेज, दोनों का ट्रांसफर सेम स्टेशन को हो रहा है विद इन 60 डेज में, चाहे एक साथ एक टाइम में हो और विद इन 60 डेज में दोनों का अलग अलग ट्रांसफर हो सेम प्लेस को, मगर विद इन 60 डेज कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट एक ही स्पाउस को मिलेगा, आइदर हस्बैंड और वाइफ। मगर यहाँ पर कंडीशन क्या है, यदि एक साथ ट्रांसफर हुआ पर्टिकुलर प्लेस को और विद इन 60 डेज सेपरेटली बोथ ट्रांसपोर्ट टू द सेम प्लेस विद इन 60 डेज, उनको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट जो मिलेगा एक ही को मिलेगा। और एक ऑप्शन है, सपोज हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और वाइफ का ट्रांसफर वही जगह को हुआ, मगर जो टाइमिंग है इट मीन्स विद इन 60 डेज टू 6 मंथ्स के अंदर हुआ। हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, हस्बैंड का ट्रांसफर होने के बाद जो वाइफ का ट्रांसफर हुआ वो हो गया क्या है ना, 60 डेज टू 6 मंथ्स के अंदर हुआ हस्बैंड का ट्रांसफर के बाद। तो उस केस में जो वाइफ को CTG मिलेगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा, वो 50% ऑफ CTG मिलेगा। बेसिकली CTG कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट 80% ऑफ बेसिक पे होता है, उसका 50% मिलेगा। इफ द ट्रांसफर टेक्स प्लेस आफ्टर 60 डेज बट विद इन 6 मंथ्स, जैसे मैं एग्जांपल दिया, हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ पर्टिकुलर प्लेस को और 60 डेज के बाद और विद इन 6 मंथ्स, 60 डेज के बाद और विद इन 6 मंथ्स वाइफ का ट्रांसफर उसी जगह को हुआ, तो उस केस में जो वाइफ को CTG मिलेगा वो 50% ऑफ CTG मिलेगा, 50% ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे। यदि दोनों का ट्रांसफर में अंतर हो जाएगा मोर देन 6 मंथ्स, अभी हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया फिर 6 मंथ्स के बाद वाइफ का ट्रांसफर उसी जगह को हुआ, तब उस केस में नॉर्मल हिसाब से CTG मिलेगा वाइफ को 80% ऑफ बेसिक पे। तो यहाँ पर 3 चीज आता है, विद इन 60 डेज सेकेंड स्पाउस का ट्रांसफर होता है तो वहां पर CTG नहीं मिलेगा, एक ही स्पाउस को CTG मिलेगा, और सेकेंड स्पाउस का जो ट्रांसफर होता है विद इन 60 डेज एंड 6 मंथ्स, इट मीन्स आफ्टर 60 डेज एंड विद इन 6 मंथ्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ वन स्पाउस। हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ उसके बाद वाइफ का ट्रांसफर होगा, मगर 60 डेज के बाद होगा और विद इन 6 मंथ्स होगा, वहां पर वाइफ को जो CTG मिलेगा वो 50% मिलेगा। मगर यदि सेकेंड स्पाउस का ट्रांसफर आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द फर्स्ट स्पाउस होता है, जैसे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया 6 महीने के बाद वाइफ का ट्रांसफर वही जगह को होता है, वही जगह को, सेम प्लेस को, यहां पर याद रखना है, सेम प्लेस को, अदर जगह नहीं, सेम प्लेस को होता है, तो उस केस में उसको पूरा CTG जो 80% ऑफ बेसिक पे मिलता है। मगर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दोनों का जो ट्रांसफर हो रहा है उसी कंडीशन में सेम प्लेस को हो रहा है, डिफरेंट प्लेस को नहीं। डिफरेंट प्लेस तो अलग अलग जैसे CTG नॉर्मली मिलता है मिलेगा, और सेम प्लेस को हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट वन, where the husband wife couple both central government employees are transferred from one and the same old station to one and the same new station and both require separate cars in public interest. Transportation expenses of personal cars shall be reimbursed to both of the husband wife couple. तो पब्लिक इंटरेस्ट में दोनों अलग अलग कार में ट्रैवल कर सकते हैं, तो उस केस में दोनों का रिइंबर्समेंट होगा। मगर यहाँ पर कंडीशन एक है, पब्लिक इंटरेस्ट में दोनों को ट्रैवल करना है कार में सेपरेटली, तो उस केस में होगा रिइंबर्समेंट होगा।
ज्वाइनिंग टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा ट्रांसफ़र होता है पब्लिक इंटरेस्ट में, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र नहीं, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में हमको ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है कि हमको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता है। ओनली पब्लिक इंटरेस्ट में जब हमारा ट्रांसफ़र होगा तब उस केस में हमको ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है और ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। तो उसके ऊपर जाएंगे। ज्वाइनिंग टाइम एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू हेडक्वार्टर्स, नॉर्मल केसेस और ज्वाइनिंग टाइम। यदि डिस्टेंस ओल्ड हेडक्वार्टर एंड न्यू हेडक्वार्टर डिस्टेंस इज विद इन 1000 किलोमीटर, बेसिकली ज्वाइनिंग टाइम हमको 10 डेज मिलता है नॉर्मली। मगर हम रोड जर्नी कंटिन्यूसली 200 किलोमीटर्स और मोर देन दैट करेंगे तो उसमें और 2 डेज ऐड होगा। नॉर्मली 10 डेज मिलेगा विद इन 1000 किलोमीटर्स, बट ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल वेयर देयर इज कंटिन्यूस ट्रैवल बाय रोड फॉर मोर देन 200 किलोमीटर्स, तब 12 डेज होगा। जब हमारा जो डिस्टेंस होगा ओल्ड हेडक्वार्टर एंड न्यू हेडक्वार्टर, इट इज विद इन 1000 किलोमीटर्स एंड 2000 किलोमीटर्स, उसके अंदर होगा मोर देन 1000 एंड विद इन 2000 किलोमीटर। नॉर्मली ज्वाइनिंग टाइम 12 डेज मिलेगा। मगर जब हमारा रोड जर्नी कंटिन्यूसली मोर देन 200 किलोमीटर्स होगा तब 15 डेज मिलेगा। मोर देन 2000 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा ओल्ड हेडक्वार्टर एंड न्यू हेडक्वार्टर, उस केस में जो नॉर्मली ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा 15 डेज मिलेगा। और वही रोड जर्नी कंटिन्यूसली मोर देन 200 किलोमीटर्स होता है तो 15 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका ट्रांसफ़र होता है तो ये ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलेगा, आपको पूछने का जरूरत नहीं है। ये है विद इन 1000 किलोमीटर 10 डेज और कंटिन्यूस रोड जर्नी फॉर मोर देन 200 किलोमीटर्स 12 डेज, विद इन 1000 एंड 2000 किलोमीटर 12 डेज एंड कंटिन्यूस रोड जर्नी फॉर मोर देन 200 किलोमीटर्स 15 डेज। और if it is more than 2000 kilometer then 15 days or 15 days. In case of transfer between places located at distance up to 20 kilometers or within the same city, यदि सेम सिटी में ट्रांसफ़र होता है कि जो हमारा डिस्टेंस है लेस दैन 20 किलोमीटर्स होता है, जो न्यू हेडक्वार्टर एंड ओल्ड हेडक्वार्टर, वहाँ पर 1 डे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, ओनली 1 डे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In case of transfer between places located at distance up to 20 kilometers or within the same city, 1 day joining time is allowed. जो 1 डे मिलेगा उसको हम अवेल नहीं करेंगे तो हमारा EL जो अर्नड लीव है उसमें वो क्रेडिट नहीं होगा। जो 1 डे मिलेगा, सपोज अभी जो ज्वाइनिंग टाइम हमको जैसे मिलता है, सपोज हमको ज्वाइनिंग टाइम 12 डेज मिला, उसमें हम सपोज 2 डेज हमारा जो ट्रांजिट टाइम में चला गया, जर्नी में चला गया, तो 10 डेज बचा, वो 10 डेज हमारा EL में क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मुझे 15 डेज ज्वाइनिंग टाइम मिला, उसमें मैं 2 डेज अवेल किया ट्रांजिट टाइम, जर्नी में मैं 2 डेज यूज किया, तो कितना बचा? 13 डेज ज्वाइनिंग टाइम बचा, वो मेरा EL में क्रेडिट हो जाएगा। मेरा सर्विस बुक में जो अर्नड लीव है उसमें वो क्रेडिट हो जाएगा। मगर यहाँ पर जब हमारा ट्रांसफ़र होता है विद इन 20 किलोमीटर्स, वहाँ पर ज्वाइनिंग टाइम 1 डे मिलता है, उसको हम अवेल नहीं करेंगे तो वो EL में क्रेडिट नहीं होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एयर ट्रैवल करेंगे तो मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम 12 डेज मिलेगा। इन केस ऑफ एयर ट्रैवल द मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम अवेलेबल इज 12 डेज। इन केस ऑफ ट्रांसफर टू और फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन इंक्लूडिंग सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड लद्दाख, 2 डेज एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम, जो ज्वाइनिंग टाइम में एक्सप्लेन किया उसमें 2 डेज आप ऐड कर दो, शैल बी अलाउड बिसाइड्स नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम। नॉर्थ ईस्ट रीजन को जब हमारा ट्रांसफ़र हुआ कि वहाँ से ट्रांसफ़र होकर हम आ रहे हैं नॉर्मल स्टेशन को, तो टू एंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो हमको 2 डेज एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम के अलावा मिलता है। द डिस्टेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओल्ड हेडक्वार्टर्स टू न्यू हेडक्वार्टर्स इन ऑल केसेस इंक्लूडिंग, जो हमारा ज्वाइनिंग टाइम जो मैं बोला 1000 किलोमीटर, विद इन 1000 to 2000 एंड मोर देन 2000 किलोमीटर, ये जो कैलकुलेट होता है बेसिकली हम ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर उसका डिस्टेंस हम देखते हैं और उसके हिसाब से ज्वाइनिंग टाइम फिक्स होता है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, सपोज द एम्प्लॉय रिसीव्स ऑर्डर्स इन ए प्लेस अदर देन हेडक्वार्टर, और एक प्लेस सपोज वो अदर एक हेडक्वार्टर में काम कर रहा है, उसको ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला, वो वहाँ से वो जर्नी करेगा न्यू हेडक्वार्टर को, तो उसमें वो डिस्टेंस को देखा जाएगा। बेसिकली हम जो देखते हैं ओल्ड हमारा हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर हम देखते हैं डिस्टेंस, उसको देखकर हम ज्वाइनिंग टाइम हमारा फिक्स होता है। मगर यदि
एम्प्लॉई और कोई हेडक्वार्टर में काम कर रहा है और उसको ट्रांसफर ऑर्डर मिला, उसको जो ज्वाइनिंग टाइम फिक्स होगा वो उसी हेडक्वार्टर से होगा टू न्यू हेडक्वार्टर। द एम्प्लॉय मेक्स ओवर चार्ज एट ए प्लेस अदर देन हिज ओल्ड हेडक्वार्टर। अभी उसको और कोई हेडक्वार्टर में चार्ज मिला है, वो हैंडल कर रहा है, वो खुद का जो हेडक्वार्टर है उसमें वो नहीं है, और कोई हेडक्वार्टर में उसको चार्ज दिया गया है और वहाँ पर उसको ट्रांसफर ऑर्डर मिला, तो उसी जो हेडक्वार्टर है उसी से वो न्यू हेडक्वार्टर को वो डिस्टेंस देखकर ज्वाइनिंग टाइम फिक्स होगा। हेडक्वार्टर्स ऑफ एन एम्प्लॉय चेंज्ड व्हाइल ऑन टूर और टूर स्टेशन। सपोज द एम्प्लॉय हैज गॉन फॉर टूर, वो टूर में गया है और वहां पर उसको ट्रांसफर ऑर्डर मिला, वो अभी टूर स्टेशन में है, उसको ट्रांसफर ऑर्डर मिला, तो वहां से वो न्यू हेडक्वार्टर जाएगा, तो उस केस में जो ज्वाइनिंग टाइम फिक्स होगा वो टूर स्टेशन टू न्यू हेडक्वार्टर जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसके हिसाब से ज्वाइनिंग टाइम फिक्स होगा। टेम्पररी ट्रांसफर इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट ट्रांसफर। कभी कभी टेम्पररी ट्रांसफर जो होता है लेस देन 180 डेज होता है। मेरा प्रीवियस थर्ड पार्ट देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस का, उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो टेम्पररी ट्रांसफर लेस देन 180 डेज है, और परमानेंट ट्रांसफर कब होगा, वो मोर देन 180 डेज, उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। जो लेस देन 180 डेज है वो टेम्पररी है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया मोर देन 180 डेज, तो वो परमानेंट ट्रांसफर हो गया। तो टेम्पररी ट्रांसफर इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट ट्रांसफर। इस केस में जब मोर देन 180 डेज हो जाएगा तब भी हम देखेंगे कि क्या डिस्टेंस है। ओके, इट मीन्स फ्रॉम द हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर। ज्वाइनिंग टाइम कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 डेज बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ज्वाइनिंग टाइम एक्सटेंड हो सकता है अप टू 30 डेज एंड बियॉन्ड 30 डेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट टोटल टाइम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, कैसे एक्सटेंड होगा ना, 8 डेज फॉर प्रिपरेशन प्लस रीजनेबल ट्रांजिट टाइम प्लस हॉलीडेज इफ एनी फॉलोइंग। तो ज्वाइनिंग टाइम एक्सटेंड हो सकता है अप टू 30 डेज और मोर देन दैट बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अप टू 30 डेज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बियॉन्ड 30 डेज तो बेसिकली मिनिस्ट्री, बियॉन्ड 30 डेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपका ज्वाइनिंग टाइम अप टू 30 डेज जो एक्सटेंड होगा बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इसको याद रखना है। मगर ज्वाइनिंग टाइम जो बियॉन्ड 30 डेज एक्सटेंड होगा इट मस्ट बी एक्सटेंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपका डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कर सकता है। और इसमें इसी तरीके से होता है, फिक्स होता है 8 डेज फॉर प्रिपरेशन फॉर रीजनेबल ट्रांजिट टाइम प्लस हॉलीडेज इफ एनी फॉलोइंग। जो हमको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा कैन बी कंबाइंड विथ एनी काइंड ऑफ लीव, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इसलिए मैं रेड मार्क दे दिया। जो हमको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा वो कोई लीव के साथ कंबाइंड हो सकता है, मगर कैजुअल लीव जो एक्सेप्ट कैजुअल लीव उसके साथ कंबाइंड नहीं होगा ज्वाइनिंग टाइम के साथ, क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम एक ईएल की तरह होता है, अर्न लीव। उसमें हम ट्रांजिट, जैसे मुझे ज्वाइनिंग टाइम सपोज 15 दिन मिला, मैं उसमें 2 डेज लिया ट्रांजिट टाइम में, जो मेरा जो जर्नी टाइम में मैं 2 डेज को स्पेंड किया, ठीक है, और उसमें जो 13 डेज बचा वो मेरा ईएल में क्रेडिट हो जाएगा। और मुझे ज्वाइनिंग टाइम मिला उसके साथ में कुछ ईएल ले लिया कि एचपीएल ले लिया, वो ऐड हो सकता है, और एक्सेप्ट सीएल उसके साथ कंबाइंड नहीं होगा। इफ एन एम्प्लॉय इन ट्रांजिट receives order directing to report at place other than the one in the original orders। यदि एम्प्लॉई अभी ट्रांजिट में है, बेसिकली ट्रांजिट मीन्स बेसिकली जर्नी कर रहा है वो न्यू स्टेशन को, और जब जर्नी कर रहा है उसी टाइम में उसको ऑर्डर मिला और एक प्लेस को जाने के लिए, ठीक है, और एक प्लेस को ऑर्डर मिला जाने के लिए, तो जितना दिन वो ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है जो ज्वाइनिंग टाइम वो गया, वो फिर न्यू तरीके से उसको ज्वाइनिंग टाइम इशू किया जाएगा। तो इफ एन एम्प्लॉय इज ट्रांजिट रिसीव्स ऑर्डर्स डायरेक्टिंग टू रिपोर्ट एट ए प्लेस अदर देन द वन इन द ओरिजिनल ऑर्डर्स, ही विल गेट फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम। सपोज मैं अभी ट्रांजिट में हूँ, मुझे ज्वाइनिंग टाइम ओरिजिनल प्लेस के लिए ज्वाइनिंग टाइम मुझे मिल चुका है और 3 दिन हो चुका है, और मुझे ऑर्डर मिल रहा है कि आप और एक प्लेस में जाकर ज्वाइन करो, तो उस केस में मुझे फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ही विल गेट फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर्स, अगेन बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ रिसिप्ट ऑर्डर एंड न्यू हेडक्वार्टर। जो जिस प्लेस में उसको ऑर्डर मिला उसी प्लेस से न्यू हेडक्वार्टर को कैलकुलेट किया जाएगा, उसके हिसाब से उसको ज्वाइनिंग टाइम फिर मिलेगा। इन एडिशन टू द ज्वाइनिंग, जो ज्वाइनिंग टाइम अवेल किया है वो गया, उसके अलावा जिस पर्टिकुलरली वो ट्रांजिट में है, वो जर्नी कर रहा है, इमीडिएटली उसको ऑर्डर मिलेगा कि आपको ओरिजिनल प्लेस नहीं जाना है, आपको और एक प्लेस को जाना है। तो उस केस में आप जितना दिन ओरिजिनल प्लेस के लिए आप जितना दिन ज्वाइनिंग टाइम आप स्पेंड कर चुके हो,
ओके, वो तो आपको मिल गया ऑलरेडी, प्लस फिर एक फ्रेज के आकार में आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। मगर वो ज्वाइनिंग टाइम कैसे फिर फिक्स होगा ना, बेसिकली एट द प्लेस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव द ऑर्डर, ओके, एंड टू द न्यू हेडक्वार्टर। तो उसमें जो डिस्टेंस होगा, ओके, वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव द ऑर्डर एंड न्यू हेडक्वार्टर, उसके बीच में डिस्टेंस होगा, उसके हिसाब से ज्वाइनिंग टाइम फिक्स होगा। इफ द ट्रांसफर इज कैंसल्ड आफ्टर हैंडिंग ओवर चार्ज एंड बिफोर टेकिंग ओवर न्यू चार्ज, कभी कभी होता है क्या, ओल्ड हेडक्वार्टर में हम चार्ज हैंड ओवर कर चुके हैं, मगर न्यू प्लेस में हम चार्ज टेक ओवर नहीं किए हैं। ओल्ड हेडक्वार्टर में हम चार्ज हैंड ओवर कर चुके हैं एंड बिफोर टेकिंग ओवर न्यू चार्ज हम वहां पर न्यू चार्ज नहीं लिया है, तो उसमें हमारा सपोज ट्रांसफर कैंसिल हो गया, तो उस केस में उस टाइम वो बेसिकली विल बी ट्रीटेड एज ज्वाइनिंग टाइम। फॉर सच पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम पे एंड डीए एट द रेट्स ड्रॉन बिफोर relinquishing चार्ज एंड HRA एट रेट्स applicable एट ओल्ड स्टेशन विल बी ड्रॉन, एज यूजुअल मैनर मिलेगा। ओके, जो जिसके हिसाब से हमारा ओल्ड हेडक्वार्टर के हिसाब से HRA मिलेगा और पे डीए ओल्ड हेडक्वार्टर के हिसाब से मिल रहा है। और जब हम चार्ज हैंड ओवर कर चुके हैं मगर वहाँ पर चार्ज हम न्यू चार्ज टेक ओवर नहीं किए हैं, उसमें ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया, तो वहाँ पर वो ज्वाइनिंग टाइम में चला गया और ओल्ड हेडक्वार्टर के हिसाब से हम पे एंड डीए हम ड्रॉन करेंगे और HRA हमको ओल्ड हेडक्वार्टर के हिसाब से मिलेगा। मगर जो कन्वेयंस एंड जो ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है परमानेंट ट्रांसफ़र में, वो नहीं मिलेगा। हम कोई सपोज एडवांस ले चुके हैं ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए एडवांस, तो उसको हमको रिफंड करना पड़ेगा, वो हम अवेल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया। मगर जो ज्वाइनिंग टाइम हम स्पेंड किया है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, वो जो ज्वाइनिंग टाइम स्पेंड किया है क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसमें तो ओल्ड हेडक्वार्टर के हिसाब से HRA और पे और डीए जो ड्रॉन कर रहे हैं ओल्ड स्टेशन हमारा जो उसके हिसाब से हमको मिलेगा, मगर कन्वेयंस एंड टीए फॉर परमानेंट ट्रांसफर आर नॉट एडमिसिबल। जो ज्वाइनिंग टाइम में बोल चुका हूँ, जो ज्वाइनिंग टाइम हमको मिलता है उसको अनअवेल करेंगे, हम अवेल नहीं करेंगे तो वो EL में क्रेडिट हो जाएगा। अनअवेलिंग ज्वाइनिंग टाइम कैन बी क्रेडिटेड टू EL अकाउंट आज पर रूल, ये है 26(1)(a)(ii) ऑफ लीव रूल्स। सपोज 12 डेज का ज्वाइनिंग टाइम आपको मिला, आप उसमें 2 डेज स्पेंड किया और 10 दिन बच गया तो वो EL में क्रेडिट हो जाएगा। मगर जो 1 डे ज्वाइनिंग मिलता है, जब ट्रांसफर इज हैपेंड विद इन द सेम सिटी एंड बेसिकली लेस दैन 20 किलोमीटर्स, 1 डे ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, वो 1 डे ज्वाइनिंग टाइम को अवेल हम नहीं करेंगे तो वो EL में क्रेडिट नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा। वही है ट्रांसफर इन सेम स्टेशन एंड ट्रांसफर नॉट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेसिडेंस, 1 day joining time is allowed. If it is not used, then it is not credited to EL account and it is lapsed. Joining time is sanctioned by the administrative authority having control over the employee at the time he proceeds on transfer. जब वो प्रोसीड कर रहा है, ओल्ड हेडक्वार्टर में रिलीव हो गया, वो अभी प्रोसीड कर रहा है न्यू हेडक्वार्टर को, तो आप किसका कंट्रोल में आओगे? बेसिकली जो ज्वाइनिंग टाइम सैंक्शन किया है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, आपका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसका कंट्रोल में आप रहोगे। तो जो ज्वाइनिंग टाइम में आप जो ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलता है 10 दिन 12 दिन ज्वाइन करने के लिए, उस टाइम में आपको सैलरी कौन देगा? न्यू हेडक्वार्टर, जो न्यू आपका ऑफिस है वो आपको सैलरी देगा ज्वाइनिंग टाइम का। ठीक है, आप रिलीव हो गया, आपको 12 दिन सपोज ज्वाइनिंग टाइम मिला, तो सपोज आप 12 दिन पूरा अवेल कर दिया ज्वाइनिंग टाइम, आप ज्वाइन किया, तो जो ज्वाइनिंग टाइम आप अवेल किया उसके लिए सैलरी आपका न्यू ऑफिस देगा, जो न्यू हेडक्वार्टर में आप ज्वाइन करोगे वो ऑफिस आपको देगा। ज्वाइनिंग टाइम पे इज टू बी पेड बाय द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वेयर द एम्प्लॉय जॉइन्स ऑन ट्रांसफर। रिक्वेस्ट ट्रांसफर में ओनली पब्लिक इंटरेस्ट में, बार बार बताया, ओनली पब्लिक इंटरेस्ट में जब ट्रांसफर होता है हमको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है और ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। जब रिक्वेस्ट ट्रांसफर में जाएंगे ना हमको ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा ना हमको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। एडवांस को चलेंगे, एडवांस ऑफ टीए ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफर टाइम हम एडवांस ले सकेंगे। एडवांस ऑफ टीए आज एडमिसिबल अंडर द रूल्स फॉर सेल्फ एंड फैमिली, फैमिली और सेल्फ के लिए दिस कैन बी ड्रॉन आइदर इन 1 इंस्टॉलमेंट और सेपरेटली फॉर सेल्फ एंड फैमिली इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, इसको याद रखना है। एलिजिबिलिटी
क्या है, एम्प्लॉइज अंडर ऑर्डर्स ऑफ ट्रांसफर इंक्लूडिंग दोज ऑन लीव, जिस एम्प्लॉइज को ऑर्डर मिला है और जो एम्प्लॉइज लीव में है उनको भी ऑर्डर मिला है ट्रांसफर ऑर्डर, वो एलिजिबल है एडवांस के लिए। एम्प्लॉइज प्रोसीडिंग ऑन फॉरेन सर्विस इन इंडिया और ऑन रिवर्सन फ्रॉम सच सर्विस, फॉरेन सर्विस अदर डिपार्टमेंट को आपका विद इन इंडिया में अदर डिपार्टमेंट को आप ट्रांसफर हुआ, आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और एक डिपार्टमेंट में आप ट्रांसफर हो रहा है तो वो फॉरेन सर्विस हो जाता है, हमारा डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। तो उस केस में एम्प्लॉइज प्रोसीडिंग ऑन फॉरेन सर्विस इन इंडिया और ऑन रिवर्सन, वो कुछ दिन के लिए अदर डिपार्टमेंट को जाता है और फिर वो रिवर्स हो जाता है उसका ओरिजिनल डिपार्टमेंट को, तो उस केस में भी एडवांस मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए। नॉट एडमिसिबल व्हेन द ट्रांसफर इज एट ऑफिशियल्स रिक्वेस्ट और ऑन म्यूचुअल बेसिस और विद इन द सेम स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई एम्प्लॉय का ओन रिक्वेस्ट से ट्रांसफर हुआ, म्यूचुअल बेसिस में ट्रांसफर हुआ और विद इन सेम स्टेशन में ट्रांसफर हुआ, तो उस केस में एडवांस नहीं मिलेगा। तो जो ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए वहाँ पर एडवांस नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉइज एडवांस ऑफ पे में बी ग्रांटेड ऑन फर्निशिंग ए सियोरिटी फ्रॉम ए परमानेंट एम्प्लॉय। ट्रांसफर एम्प्लॉय को भी एडवांस मिलेगा जब उसका ट्रांसफर होता है, मगर एक सियोरिटी कौन देगा, एक परमानेंट एम्प्लॉय देगा। तो ये सब एलिजिबिलिटी है फॉर एडवांस ऑफ टीए, बेसिकली एडवांस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ये सब एलिजिबिलिटी कंडीशन है। अमाउंट ऑफ एडवांस हम हमारा सैलरी से एडवांस ले सकते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल ट्रांसफर 1 मंथ्स पे। नॉर्मल ट्रांसफर केस में 1 मंथ्स पे हमको मिलेगा। इसमें नॉन परफॉर्मिंग अलाउंस, नॉन परफॉर्मिंग अलाउंस में बार बार बताया जो मेडिकल डॉक्टर्स, बेसिकली मेडिकल पर्सनल्स को एनपीए मिलता है और मिलिट्री सर्विस पे, ये सब कोई इंक्लूड नहीं होगा। जो पे होगा ओनली पे लेवल होगा, ना उसमें डियरनेस अलाउंस, ना नॉन परफॉर्मिंग अलाउंस, ना मिलिट्री सर्विस पे ये इंक्लूड नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो इनकेस ऑफ नॉर्मल, ये जो 1 मंथ्स पे है, ये बेसिकली हम सैलरी से भी एडवांस ले सकेंगे, 1 मंथ्स पे लेंगे। जब हमारा हेडक्वार्टर चेंज होगा तब हम 2 मंथ्स पे हम एडवांस के आकार में लेंगे। टीए एडवांस कैन बी ड्रॉन आइदर इन 1 इंस्टॉलमेंट और इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। ये दोनों फास्ट जो 1-2 पॉइंट है आपको याद रखना है, हमारा सैलरी से हम एडवांस लेंगे, नॉर्मल ट्रांसफर विद इन सेम स्टेशन, और जब हमारा हेडक्वार्टर चेंज होता है तब हमको 2 मंथ्स पे, तो ये सैलरी के ऊपर एडवांस हमको मिलता है। टीए एडवांस कैन बी ड्रॉन आइदर इन 1 इंस्टॉलमेंट और इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। द एडवांस ऑफ टीए नॉट एक्सीडिंग हिज एंटाइटलमेंट एज पर रूल्स फॉर सेल्फ एंड फैमिली। Advance of pay may be allowed to be drawn at the new station as well soon after the arrival of the employee there on production of last pay certificate if the advance was not drawn earlier। यदि आपका ओल्ड हेडक्वार्टर में आपको एडवांस नहीं मिला है, आप न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन किया, आपको एक लास्ट पे सर्टिफिकेट देता है। जब आपका ट्रांसफ़र होता है, आप ये मत भूलना, आपको एक लास्ट पे सर्टिफिकेट देगा आपका ओल्ड हेडक्वार्टर। उसमें क्लियरली मेंशन होगा आपका पे लेवल क्या है, कितना इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है, जो और कितना एडवांस लिया है, जो भी है उसमें क्लियरली मेंशन होगा वो सर्टिफिकेट में। वो सर्टिफिकेट हम सबमिट जाकर न्यू हेडक्वार्टर में करोगे तो आपका जो न्यू सैलरी जो होगा वो इशू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए आप ओल्ड हेडक्वार्टर में एडवांस नहीं लिया है, तो आप न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन किया, आपका लास्ट पे सर्टिफिकेट को सबमिट किया, तो वहाँ से भी आप एडवांस ले सकते हो। रिकवरी कैसे होगा टीटी एडवांस? यदि हम सैलरी के ऊपर एडवांस लेते हैं, 1 मंथ्स पे लेते हैं, तो 3 इंस्टॉलमेंट्स वो रिकवरी होगा। यदि 2 मंथ्स पे एडवांस लिया है हमारा सैलरी के ऊपर, तो 24 इंस्टॉलमेंट्स में वो रिकवरी होगा। नोट इन केस द एम्प्लॉय इज ड्यू टू रिटायर विद इन 24 मंथ्स, यदि वो 24 माने विद इन 2 ईयर्स में रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसका सैलरी से वो रिकवर कर दिया जाएगा बिफोर रिटायरमेंट। द इंस्टॉलमेंट शैल बी सुइटेबल एडजस्टेड सो दैट एडवांस इज फुली रिकवर्ड बिफोर हिज रिटायरमेंट। The recovery shall be in whole rupees. The recovery shall commence from the month in which the employee draws full month's pay and or leaves salary after joining at the new station. The recovery of advance TA will be from the TA bill. आपको TA bill सबमिट करना पड़ेगा, तो उस केस में आपका जो एडवांस है वो रिकवरी होगा। मगर बेसिकली सैलरी एडवांस में वो है, सैलरी एडवांस एक 1 मंथ का होता है नॉर्मल ट्रांसफर में। मैं अभी बताया जब विद इन सेम सिटी में ट्रांसफ़र होता है, तो आपको 1 मंथ पे सैलरी के ऊपर एडवांस मिलता है, आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स वो रिकवरी होगा। यदि हेडक्वार्टर आपका चेंज हो रहा है, तो 2 मंथ्स पे के ऊपर
आपको एडवांस मिलेगा सैलरी के ऊपर, ओनली पे, बेसिक पे लेना है, उसमें ना डियरनेस अलाउंस, ना मिलिट्री सर्विस पे, ना नॉन परफॉर्मिंग अलाउंस, ये सब नहीं मिलेगा, ये सब नहीं ऐड होगा, ओनली पे लेवल को लेना है। तो सैलरी के ऊपर जो है सेम सिटी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, 1 मंथ पे आपको एडवांस मिलता है, और वो रिकवरी होगा 3 इंस्टॉलमेंट्स में। और जब हेडक्वार्टर चेंज होगा तो आपको 2 मंथ्स पे आपको एडवांस मिलता है, वो 24 इंस्टॉलमेंट्स में रिकवरी होगा, ठीक है। और अदर केस में जैसे आप टीए ले रहे हो, एडवांस ले रहे हो, तो आपका टीए बिल सबमिट करोगे, उसमें रिकवरी होगा। ये जो चीज़ है क्लेमिंग ऑफ टीटीए ऑन ट्रांसफ़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार होता है कि 60 डेज जो हम टीटीए क्लेम करेंगे जब हम न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन करेंगे, उससे हम 60 डेज के अंदर हम हमारा टीए बिल हम सबमिट करेंगे। जो ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस बिल जो है हम सबमिट करेंगे, नहीं तो वो फॉरफिट हो जाएगा। तो क्लेमिंग ऑफ टीटीए विद इन 60 डेज आफ्टर ज्वाइनिंग इन न्यू हेडक्वार्टर्स विदाउट एडवांस। आप एडवांस नहीं लिया है, एडवांस नहीं लिया है, कोई टीटीए के लिए एडवांस नहीं लिया है, तो आपको 2 मंथ्स के अंदर टीए क्लेम करना है। कब से? जब आप ज्वाइनिंग किया उससे आपका काउंट कर लो 60 डेज। पैकेज ग्रांट वैसा ही, आपका जो पर्सनल गुड्स है वो रीच हो गया आपका न्यू हेडक्वार्टर में, जो जिस डेट में वो डिलीवरी हुआ उसी डेट से आप 60 डेज के अंदर वो पैकेज ग्रांट को आप क्लेम करोगे, वो पैकेज का जो वाउचर है आप सबमिट करोगे। तो 2 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर फॉरफिट हो जाएगा। बेसिकली सिमिलरली कन्वेयंस चार्जेस, जैसे कोई कार हो कि 2 व्हीलर हो, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय रोड कि बाय रेल, जब वो डिलीवरी होगा उससे 60 डेज के अंदर आपको रिइंबर्स करना है, ठीक है। और यदि एडवांस आप लिए, ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए एडवांस आप लिया है, टीटीए एडवांस लिया है, तब 15 डेज के अंदर आपको टीटीए बिल को सबमिट करना है। 15 डेज एडवांस लिया है विद इन 15 डेज, एडवांस नहीं लिया है विद इन 60 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जब ट्रांसफर होता है। इफ द एडवांस टेकन देन इट मस्ट बी क्लेम्ड विद इन 15 डेज आफ्टर ज्वाइनिंग इन न्यू हेडक्वार्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माई फ्रेंड्स, आई थिंक I have clarified everything properly. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. My channel name is Asit Government Rule Guru, so that you can get notification for my incoming videos. Another 2 videos related to the traveling allowance I will upload in future. So please subscribe my channel. Thank you.